Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter The Cold War Era, and under this chapter we are discussing non-aligned movement, which was a challenge to bipolarity. In the previous class we have discussed about it, why this movement started, because we have seen that after the Second World War, the countries of Asia, Africa and Latin America got independence, and in front of these countries at that time there was two options: either to join this US bloc or to join the Soviet bloc. But due to initiative of some leaders like Pandit Nehru, then the leader of Yugoslavia, Joseph Broz Tito, and leader of Egypt, that Gamal Abdel Nasser, then Indonesia Sukarno, and Ghana's Kwame Nkrumah. All these leaders took initiative in starting a new movement, which was not to join either of the alliance, not to join either of the blocks, but to make a new organization, a new movement that was called non-aligned movement. So these are the founding countries: India, Yugoslavia, Ghana, Egypt, and Indonesia. These are the founding countries of non-aligned movement. Its first meeting held in 1961 in Belgrade, that is the capital of Yugoslavia at that time, and its 18th summit held in 2019 in Azerbaijan. In its first summit there were 25 members, and in this latest summit, which was held in Azerbaijan in 2019, there were 120 member states and 17 observers. Okay, so we have discussed all these things, and now we want to know more about this non-aligned movement. So when we are discussing Soviet bloc or US bloc, these two blocks are completely homogeneous blocks, है ना? All the communist countries are in the Soviet bloc, all the capitalist countries are in the US bloc. But when we talk about non-aligned movement, it was not a homogeneous group, because there was no such criteria for joining the non-aligned movement. You may belong to capitalist ideology, you may belong to socialistic ideology, you may belong to a kind of mixed ideology. So there was no such criteria, and that is the reason the non-aligned movement became completely heterogeneous group in which there was lack of homogeneity. So it becomes quite difficult to define non-aligned movement. What do you mean by non-alignment? So many times it becomes easier to understand non-alignment when we understand what non-alignment is not, है? And in this connection we have discussed that non-alignment, we can understand non-alignment by understanding this, that non-alignment is neither isolationism nor neutrality. So these two terms are very important to understand in order to understand the non-aligned movement. Isolationism and neutrality. Okay, so the policy of isolationism means to become isolated, to be aloof from world affairs.
When a country becomes isolated, it has nothing to do with the outer world. It adopts a policy of aloofness. This kind of policy was adopted by US. US got independence on 4th July 1776, and then the process of its constitution making started, and its constitution was implemented in the year 1787. From 1787, this country adopted the policy of isolationism, to be isolated. It focused only on itself. It has nothing to do with what was happening in the outside world. It focused on its economic development, its technological development, its military development. All kind of development was taking place by adopting the policy of isolationism. Then in First World War, in the starting of the war, still America was not a part of the war, but later it involved in the war, and by that time, from 1776, or we can say 1787, जबकि उसका constitution start होता है, from 1787 to this First World War, till First World War, the country has adopted this policy of isolationism, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी वर्ल्ड अफेयर से, पॉलिटिकल मैटर से कंट्री को कोई मतलब नहीं होता. बट if we see non-aligned countries, they are not isolated. Non-aligned countries are very much involved in world politics. Just take the example of our own country, India. We are very much involved in world politics, as we have seen when we were discussing the arenas of Cold War. We have seen that Korean crisis arose in from 1950 to 53 का जो period था. At that time Korean crisis was there, and India played, especially Pandit Nehru, he played a very, very important role in mediation, in mediating, in bringing peace between these two Koreas. तो ये क्या है, दिस इज, अगर हम आइसोलेशनिज्म होता, अगर नाम का मतलब आइसोलेशनिज्म होता, तो हमको कोरियन क्राइसिस सॉल्व करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, है ना. बट वी प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन सॉल्विंग द कोरियन क्राइसिस, है ना. तो इट्स नॉट आइसोलेशनिज्म. देन द सेकेंड टर्म इज न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी मीन्स कि अ कंट्री हैज नथिंग टू डू विथ war, to stay away from war, completely staying away from war. They will neither participate in war, nor they will help in ending the war. They have nothing to do with the war. न तो वो वॉर स्टार्ट करेंगे, न वॉर में इन्वॉल्व होंगे, न वॉर को एंड करने के लिए कोई एफर्ट करेंगे. they are not having any relationship with war. स्विट्जरलैंड इज सच अ न्यूट्रल कंट्री. तो न्यूट्रल कंट्री होने का मतलब यही है कि आपको वॉर से कोई मतलब नहीं है. चाहे आप मतलब कोई भी दो कंट्री भी अगर लड़ रहे हैं, आपस में वॉर हुआ, किसी ने अटैक किया, तो यू डोंट नीड टू कंडेम द अटैक, यू डोंट नीड टू अप्रिशिएट एनी एक्ट ऑफ वॉर और एनीथिंग लाइक दैट. आपको किसी का भी न तो सपोर्ट करना है, न ही उसको अपोज करना है अगर वो वॉर में इन्वॉल्व है. तो दैट इज न्यूट्रलिटी, कि you don't need to issue any statement regarding the war. But if we see our country, it's not like that. Our country is an aligned country, है ना, but still we ourselves involved in war with Pakistan. We have war in 1947, then in 1965, then in 1971, then we have war with China as well in 1962.
So we are not neutral country. We are non-aligned, and non-aligned does not mean that we should be neutral country, है ना. So we are the non-aligned countries are involved in war, है ना. And not only we are involved in war, but we also try to prevent the war, है ना. कि किस तरह से जो वॉर अगर हो रहा है, क्राइसिस अगर है, तो कैसे उसको ख़त्म किया जाए, हम उसके लिए भी एफर्ट करते हैं. तो दिस इज नॉन अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट का सीधा मतलब है कि आपको किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं होना है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना है. यू हैव टू मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स. यू आर नॉट सपोज टू बी अलाइंड. अलाइंड मतलब झुकाव, ना तो इस ग्रुप की तरफ झुकाव होगा ना उस ग्रुप की तरफ झुकाव होगा. आपको इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है दोनों ही ग्रुप से, दोनों ही ब्लॉक से. दिस इज नॉन अलाइनमेंट. ओके, एंड नाउ वी विल सी अ न्यू टॉपिक, दैट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. New international economic order. Now we will discuss some important economic issues, economic matters of world politics. As we discussed earlier that non-aligned countries were those countries which became independent after the end of the Second World War. So these countries of Asia, Africa and Latin America have some common problems. Some problems which were common in all these countries, like one of the most important challenge in front of these countries was economic development or economic growth, we can say, because during the colonial rule there was a very high level of exploitation by the colonial powers. They used to exploit our resources. They did not pay any kind of attention towards this development of industry or agriculture, or there was not any kind of technological development as well. So we can see that the whole period, the whole colonial era was full of economic exploitation. We were exploited economically. Here we are concerned only with the economy, that is why we are saying economic exploitation. Other than economic exploitation, social, cultural, political, all kind of exploitation was there, but here we are concerned only about the economic exploitation. What I want to convey that all the non-aligned countries were facing same kind of challenges, and one of the most important challenge was to achieve economic growth and development, to remove poverty, to remove malnourishment, to remove unemployment. So many problems were there in front of these countries, and we can broadly divide the whole world in two parts. The first is developed countries, and the second is developing countries. Developed countries are those countries which are fully developed economically, जिनका डेवलपमेंट पूरी तरह से हो चुका है. जो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, नॉर्थ में जो आते हैं मोस्टली, वो सब डेवलप्ड कंट्रीज ही हैं. ठीक है. और डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनमें अभी डेवलपमेंट हो रहा है.
इसमें डेवलपिंग कंट्रीज में सारे जो हमारे थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज, उन्हीं को हम कहते हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिनको आज़ादी मिली है. द कंट्रीज विच गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एंड दीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर द डेवलपिंग कंट्रीज. दे आर स्टिल डेवलपिंग, है ना. और जो वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, इधर अगर हम जो सोवियत ब्लॉक्स वाले भी जो कंट्रीज थे वो भी सब डेवलप्ड कंट्रीज थे, है ना. तो ये दो पार्ट में है, जिसमें एक तरफ जो डेवलपिंग में हमारे थर्ड वर्ल्ड वाले कंट्रीज आते हैं और बाकी डेवलप्ड में बाकी सारे कंट्रीज आते हैं. तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, व्हाट वी फाइंड कि जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, है ना. वर्ल्ड इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होने जरूरी हैं. एंड देयर आर मेनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, देन IMF है. इस तरह के बहुत सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमी को रेगुलेट करती है ना. अब यहाँ पर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर नॉट वर्किंग according to the principle of democracy or equality. These organizations are in the control of developed countries. Because ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट बनता है, पैसे की जरूरत होती है. इनके बजट में इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस का जो बजट है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन होते हैं, यही जो थोड़े से जो बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक US है, अदर जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, दे आर द मेन कंट्रीब्यूटर टू द बजट ऑफ दीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस. तो जब वो मेन कंट्रीब्यूटर होंगे तो इसका नेचुरल कंसिक्वेंस क्या होगा, इसका नेचुरल कंसिक्वेंस यही होगा कि दे विल बी इन अ पोजिशन टू कंट्रोल दीज ऑर्गेनाइजेशंस. सो एक्चुअली दीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. फ्यू डेवलप्ड कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं. और जब ये इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज उस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेंगे तो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, इसका कंसिक्वेंस ये होगा कि इनके वजह से ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे रूल्स बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो. इन दिस रिगार्ड यू कैन रिलेट दिस विथ the Rawls theory of justice which you studied in class 11th. रॉल की जो जस्टिस की थ्योरी है वो क्या कहती है, वो यही कहती है कि जब कभी भी हमको ये मौका मिलेगा कि हम अपने सोशल स्ट्रक्चर दैट इज अबाउट सोसाइटी, द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल टू द इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑल्सो. कहीं पर भी अगर हमको रूल बनाने के लिए मिल जाता है, आई एम द रूल मेकर, मुझे ये अथॉरिटी मिली है कि हम रूल बना सकते हैं, ठीक है, और मुझे अपनी पोजीशन पता है, उस जगह पे हम किस पोजीशन में हैं, आई एम नोइंग माई पोजीशन. तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम ऐसे रूल बनाएंगे जिससे कि हम जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में रहने वाले लोगों को बेनिफिट हो. दिस इज ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है, ये सेल्फिशनेस हमारे अंदर होती है, इसको कहीं से हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है. और दैट इज वाई जॉन रॉल्स टॉक्स अबाउट व्हील ऑफ इग्नोरेंस. अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नियम बने जिसमें कि किसी के भी साथ इनजस्टिस ना हो,
तो उसके लिए हमको वेल ऑफ इग्नोरेंस लगाना होगा, अपने आप को पे पट्टी बांधनी होगी। ये पट्टी किस लिए बांधेंगे हम? ये इसलिए बांधेंगे ताकि हमें अपना क्या पोजीशन है, वी शुड बी इग्नोरेंट ऑफ दैट पोजीशन, कि व्हाट पोजीशन आई एम होल्डिंग इन द सोसाइटी और इन द इकोनॉमी और वॉट एवर स्ट्रक्चर की बात हम कह रहे हैं। अगर हमको अपनी कंडीशन नहीं पता तो फिर हम सही काम करेंगे, है ना? यही था ना। और अगर हमें अपनी कंडीशन पता है, अपनी पोजीशन पता है, तो हम ऐसे नियम बनाएंगे जिससे कि हमको फायदा हो। दैट इज द ओनली थिंग। सोसाइटी के नियम हमारी, अगर हिंदू सोसाइटी को देखते हैं, किसने बनाया ये सारे नियम, जिसमें हम देखते हैं कि फीमेल के अगेंस्ट ही मोस्ट ऑफ दी जो रूल्स है सोसाइटी के, दे आर जेंडर बाइज्ड, दे आर इन अ वे नॉट उतना मतलब अच्छा नहीं है जितना मेल के लिए है। फीमेल के लिए वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है, क्योंकि रूल बनाने वाले मेल थे। सिंपल सी बात है। तो जो भी रूल बनाने वाला होगा उसको अगर अपनी पोजीशन पता है तो वो ऐसे ही रूल बनाएगा जिससे कि उसके ग्रुप को फायदा हो, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बजट में जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं वही चलाते हैं इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, और यही इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस रूल बनाते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो रूल्स बनेंगे वो इनके लिए तो बेनिफिशियल होंगे, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, बट दे विल बी डिस्क्रिमिनेटरी, दे विल बी एक्सप्लॉयटेटिव अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। और यही होता आया है। दिस इज द ट्रेंड। इसी चीज को हमने हम एक्सपीरियंस करते आए हैं, हम हमेशा यही देखते आए हैं, यही होता आया है सोसाइटी में, यही होता आया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। दिस इज व्हाट वी कॉल माइट इज राइट। जो जिसके पास माइट है, जो माइटी है, उसकी हर बात सही हो जाती है, भले ही वो गलत क्यों है ना। तो अब क्या हो रहा है कि इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि कैसे जो रूल्स बनते हैं। WTO रूल बना रहा है, वर्ल्ड बैंक रूल बना रही है, IMF रूल बना रहा है, बट ये सारे रूल्स जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से बन रही है, ठीक है। जैसे आज के डेट में हम क्या देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी दी जाती है, गवर्नमेंट जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी देती है। व्हाट डू वी मीन बाय सब्सिडी? सब्सिडी का मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट होता है किसी चीज़ का उससे कम करके उसको देना। लाइक जो फार्मर्स हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है कि कम प्राइस पे पेस्टिसाइड्स, कम प्राइस पे उनको फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी की रेट भी कम करके प्रोवाइड करती है ताकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। अब व्हाट वी फाइंड दैट दिस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक WTO, ये हम पे प्रेशर डालता है। हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पे इनका प्रेशर होता है कि सब्सिडी बंद करिए, ठीक है। सब्सिडी को कम करने के लिए, बंद करने के लिए हमें प्रेशराइज किया जाता है, और प्रेशर में करते भी है, गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, दे हैव नो ऑप्शन। तो ऑन द वन हैंड व्हाट इज हैपनिंग दैट दीज international organizations are putting pressure on the government of the developing countries to reduce the subsidies or to eliminate the subsidies. On the other hand, what is happening in the developed countries like America? In America, the rate of subsidy is so high for the agricultural sector that what we find that for a farmer the cost of production becomes so low that they can earn a huge profit. क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो ऑब्वियसली उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बढ़ जाता है। प्राइस कम करके भी बेचेंगे, वो लोअर प्राइस में भी अगर वो सेल कर रहे हैं तो भी उनका प्रॉफिट ही हो, ठीक है।
वहाँ पर नहीं प्रेशर है. द WTO इज नॉट देयर टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US की नहीं आपको सब्सिडी नहीं देना. वहाँ कोई प्रेशर नहीं है. द प्रेशर इज ओनली ऑन द कंट्रीज ऑफ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज है वो सब्सिडी जितना चाहे उतना दे सकते हैं. इतना ज़्यादा सब्सिडी देते हैं कि जो फार्मर है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ रह ही नहीं जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी लोअर प्राइस में भी अगर चीज़ों को सेल करते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है. अब जो डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने के कारण उन चीज़ों का प्राइस भी कम करके रखा जा रहा है. डोमेस्टिक सेलिंग तो हो ही रही है. दे आर एक्सपोर्टिंग दीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज. अब वो एक्सपोर्ट करके अपनी चीज़ों को पहुंचा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में. यहाँ पर तो आपने प्रेशर करके क्या किया कि सब्सिडी कम करवा दिया, सब्सिडी बंद करवा दिया. Because of reduction in the rate of subsidy or because of elimination of subsidy, what happens that cost of production increases in developing countries. In our domestic market, what we experience that the cost of production is very high. Cost of production बढ़ेगा तो चीज़ों की प्राइस भी वो बढ़ाएंगे फार्मर्स. मार्केट में आते आते प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है. अब मार्केट में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, दूसरा इम्पोर्टेड जो कि US से आ रहा है इम्पोर्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. प्राइस में आपको कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा. ऑलमोस्ट सेम प्राइस होगा या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा US वाला प्राइस, क्योंकि US का है तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो सस्ता जिसको हम कह रहे हैं वो यहाँ के लिए तो कॉस्टली ही होता है. तो थोड़ा सा वेरिएशन होता है, बहुत ही माइन्यूट वेरिएशन होता है. तो जब हमको मार्केट में डोमेस्टिक सामान जो है वो उसी रेट पे मिल रहा है या ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम मिल रहा है, सस्ती मिल रही है थोड़ी सी, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा रेट में हमको इम्पोर्टेड सामान मिलेगा, तो ऑब्वियसली बीइंग अ कंज्यूमर हम तो यही चाहेंगे कि हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिले. हम बाहर वाली चीज़ ही कर देंगे ना. तो क्या हो गया, अपनी चीज़ को हमने नहीं खरीदा, हमने बाहर की चीज़ को खरीदा. तो यहाँ पर फिर हमारा लॉस किसका हो गया, हमारे फार्मर्स का हो गया. तो ये कंडीशन होती है. इस तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो इस तरह से चलती है. सारे नियम, सारे रूल्स इकोनॉमी के इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको उनके बेनिफिट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बेनिफिट के अकॉर्डिंगली सारे रूल्स बनते हैं. ठीक है. तो ये जो सिचुएशन है दैट इज टोटली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, दैट इज टोटली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. तो अब हम कहेंगे कि जब आज़ादी मिली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ को, और उन्होंने अपने सामने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एफर्ट करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगी कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो प्रिवेल कर रही है, दैट इज़ हाईली एक्सप्लॉयटेटिव, दैट इज़ हाईली डिस्क्रिमिनेटरी. तो क्या किया जाए, तो इनकी तरफ से ये डिमांड आनी शुरू होती है कि इस इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज करने की ज़रूरत है. देयर इज़ नीड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. कैसा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए, नया इकोनॉमिक ऑर्डर कैसा होना चाहिए? इट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर हमारा मार्केट ओपन हो रहा है, लाइक ये भी एक प्रॉब्लम आती है. इस तरह की जो एक एग्जांपल हमने सब्सिडी का बताया, उस तरह की कई सारी चीज़. मार्केट को ही अगर हम देखें, हमारा मार्केट मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके मार्केट आर ओपन फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, बट
द मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट ओपन फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो अब इनकी तरफ से ये डिमांड आ रही है कि इक्वालिटी की बात करिए। अगर हमने अपने मार्केट को आपके लिए खोला है इन द प्रेशर ऑफ WTO, तो आपको भी अपना मार्केट हमारे सामान के लिए खोलना होगा, है ना। इस तरह के बहुत सारे डिमांड्स के साथ जिस इकोनॉमिक ऑर्डर की बात की गई उसी को हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं। इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।